Good morning to all of you. Listen, in your screen, you can see that this is the sex determination, and the sex determination is your previous chapter's topic. Like you can see on screen that this is the female, and in female, there are 23 paired chromosome are present. जस्ट बेसिक ये रिवाइज करवा रहा हूं बिकॉज ये बोर्ड पे लिखा हुआ था. सो 23 पैड, उसमें से 22 ए ऑटोजोमल पैड है, और जो सिंगल है वो सेक्स लिंक क्रोमोसोम है एक्स एक्स. एज सेम हियर इन मेल 23 पैर में से 22 ऑटोजोमल है एंड एक एक्स वाई है. क्लियर? सो इन फीमेल देर आर ओनली single type of egg cell are present. Why? Because egg cell are synthesized by meiosis process. So it is diploid and it is haploid. But in male, there are two type of chromosome X and Y. So half chromosome are of X type and half of the Y type. Is it clear? So half are of X and half are of Y. So there are two type of sperm cell. You can see here that this is the ovary and this is oviduct and it is uterus. This is the egg cell 22A plus X. If the sperm cell which is of Y type will fertilize the egg cell, this zygote will become for male. And if this sperm will fertilize, that means X type का sperm cell fertilize करेगा, तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा XX वाला. That means female वाला. समझ में आया? Female वाला बनेगा. Okay, clear? So this is the basic. That means the fetus or progeny or baby boy or girl will synthesized or generated. This will depends on male specially. Okay, so in our body the sex determination is based on chromosome, sex chromosome for male and female. But sometime like a snail यानी आपको पता होना चाहिए, जिसको आपको बोलते हैं वॉल पे स्लो मोशन में चढ़ती हुई देखी होगी आपने, गोकड़ गाय. राइट? तो स्नेल में क्या होता है, जो अभी स्नेल स्पर्म सेल प्रोड्यूस करेंगे, उसके थोड़े टाइम के बाद वो एक्सेल प्रोड्यूस करेगा, फिर से स्पर्म सेल, देन अगेन एक्सेल. सो दिस स्नेल कैन प्रोड्यूस्ड both type of gametes, male gamete and female gamete. Is it clear? So sperm cell and egg cell both will be produced. So what is affecting this snail? The snail is affected, otherwise gametogenesis is affected in snail by atmosphere. Yes, even in crocodile also the spermatogenesis or oogenesis is depend on atmosphere. Yeah, right? याद रखो. Even temperature is also affecting this spermatogenesis and oogenesis. Okay, even fertilization is affected by, that's why the atmosphere and temperature both is affecting to sex link chromosome. Clear? Now देखो, अब आज का हमारा टॉपिक है जो स्पेशल गुजकेट एंड गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट के डिपेंडेंट है. उसमें से एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू उसमें से आ सकते हैं, बट स्पेशली आज का वर्कआउट गुजकेट और गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट के लिए होगा. बराबर? ओके, चलो हम यहाँ पे देखेंगे, स्क्रीन शेयर करूंगा. जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? कौन सा चैप्टर चल रहा है? 10th, जिसमें क्या है कि यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे. देखो,
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। एक इमरजेंसी कॉल था, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेज में बोला है, एकदम इजी है तो हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, microbes are the major component of biological system on this earth. You have studied about the diversity. मैं यहाँ पे सबको म्यूट कर देता हूँ। Okay. You have studied about the diversity of living organism in class 11. Do you remember which kingdom among the living organism contain microorganism? Which are the one that are only microscopic? या ऑर्गेनिज्म तो कई सारे हैं, जैसे कि फंजाई, वो भी ऑर्गेनिज्म है, एल्जी, राइट, बैक्टीरिया, बट उसमें से माइक्रोस्कोपिक कौन है? माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है, वायरस है, वीरोइड है, प्रायोन है। ओके, तो माइक्रोब आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडी and that of other animal and plants. They are present even at site where no other life form could possibly exist. Sites such as the deep inside the geysers, thermal vents, और थर्मल वेंट यानी તમે કહો છો ને ઘણી વાર उसको क्या बोलेंगे, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ये सब इंट्रोडक्शन है, ये भी प्रिपेयर तो करना है। वेयर द टेम्परेचर में बी as high as 100 degree deep in the soil under the layers of snow several meter thick and high acidic environment में भी ये microbes होते हैं। Microbes are dissolved protozoa, bacteria, fungi, microscopic plant virus. Microscopic plant virus यानी like a tobacco mosaic virus, जो वायरस प्लांट को इफेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरस। देन वीरोइड एंड आल्सो प्रायोन दैट आर प्रोटीनेसियस इन्फेक्शन एजेंट। वो सब क्या है? प्रोटीनेसियस है, राइट। प्रायोन क्या है? प्रोटीनेसियस है। वायरस और वीरोइड में तो डिफरेंट पता है ना? वायरस यानी कैप्सिड होगा और उसमें जेनेटिक मटेरियल भी होगा, बट वीरोइड में कैप्सिड नहीं होगा, जस्ट जेनेटिक मटेरियल होगा। प्रियन में मोस्टली will be protein, okay, as a infectious agent। और यहाँ पे आपको होगा प्रोटोजुआ में क्या होगा? तो प्रोटोजुआ में अमीबा, पैरामीशियम, this all will be included in protozoa। Is it clear?
ओके, एक कॉल था इमरजेंसी इसलिए। ओके, नाउ सम ऑफ द माइक्रोब आर शोन इन फिगर। जो नीचे ड्रॉ किए, जो देखने वाले हैं, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज, राइट। जो प्लेट होती है, राइट, वो प्लेट बैक्टीरियल प्लेट होती है, पैट्रिडिस बोलते हैं। उसमें अगारोस मीडियम जैसे मीडियम होते हैं, जैसे अगारोस मीडियम में अगर अगर पाउडर होता है, जो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन है। ओके, इसलिए यहाँ बोला है। तो एक बैक्टीरिया में से मिलियन बैक्टीरिया खुद की कॉलोनी बनाते हैं। दैट कैन बी सीन विथ अ नेक्ड आई। विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन सी, इवन वी कैन सी द surface that how the colony are looks like. Such culture are useful in study on microorganism. Okay, इसीलिए तो कॉलोनी इंक्रीज की। चलो उसके बाद सेकंड पेज, सॉरी, यहाँ पे फिगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे है, यहाँ पे फिगर ड्रॉ की है। उसमें पहले यहाँ देखो, ए फिगर में क्या है, तो ये बैक्टीरियोफेज है। ए फिगर में जो ये है, ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज में हेड है, कॉलर है, राइट, इवन यहाँ पे लिखा है नेक है, राइट, और प्लेट है, देन पिन है, देन प्रॉन्स है, राइट। प्रॉन्स यानी पता है आपको, ओके। फाइबर्स, लास्ट में जो फाइबर होते हैं उसको बोलेंगे प्रॉन्स। उसके बाद बी डायग्राम क्या है, तो बी नीचे लिखा है, आप देख सकते हो, राइट। एडेनोवायरस विच कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये पूछा गया क्वेश्चन है। एडेनोवायरस इज इन्फेक्टिंग टू विच सिस्टम, तो क्या आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसको यहाँ पे ड्रॉ कर बी डायग्राम ड्रॉ किया है। और सी डायग्राम यानी ये क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। आपको होगा ऐसा कैसा वायरस, यस, रोड सेप्ट वायरस है, रोड सेप्ट। और ये इतना बड़ा होता है नहीं, ये तो माइक्रोस्कोप में एनलार्ज किया हुआ है और मैग्नीफाइड किया हुआ है। और वो यहाँ पे याद रखो, मैग्नीफाइड अबाउट, ओके, रॉड शेप्ड टोबैको मोज़ेक वायरस यहाँ लिखा है, मैग्नीफाइड अबाउट, तो ये मैग्नीफाई किया हुआ है इसलिए। चलो लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पे आप देखो ऊपर की डायग्राम में, तो ये कौन सा शेप है ऊपर रेड वाला, देखो कोकस है या बैसिलस है, कोकस है, यस, बैसिलस है, बिकॉज यहाँ पे रोड शेप है। नीचे कौन सा है, ये क्या है, कोकस है, इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा है कि वन ए डायग्राम रोड शेप दिखाई दिया, जिसमें 1500x यानी इतना मैग्नीफाई किया हुआ है। बी शेप यानी स्फेरिकल राउंड कोकस शेप, वो भी 1500x है। सी यानी रोड शेप बैक्टीरिया, द बट उसके उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। रोड शेप यानी ये बैसिलस ही है, बट उसमें फ्लैजेलेटेड बैसिलस है। और 50,000 एक्स वहां पे है ये डायग्राम में। ओके, चलो उसके नीचे हम देखें, तो यहाँ पे बोला है कि ये कॉलोनी, मैंने अभी बोला था ना पैट्रिडिस होती है, ये ए और बी डायग्राम पैट्रिडिस की है, जिसमें अगारोस पाउडर होता है, अगर अगर जेल होती है। तो यहाँ ये कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पैट्रिडिस, वो ए डायग्राम दिया है। और फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन अ पैट्रिडिस, वो बी डायग्राम ड्रॉ किया है। बराबर, क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट, आप अगर स्क्रीन पे नहीं देखना है तो आप खुद की टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। ओके, अब यहां देखेंगे, इन चैप्टर नंबर you have studied that microbe cause a large number of disease in human being, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड हुआ था, राइट, वो एस्केरिस, एल्फिलारियासिस, अमीबियासिस, वो सब हमने डिसीज भी देखे थे। इसकी बात कर रहे, यानी फंजाई से भी डिसीज होगा, बराबर, और माइक्रो बैक्टीरिया वायरस से भी होगा। They can cause disease in animal and plant, but this should not make you think that all microbes are harmful. ऐसा जरूरी नहीं है। Several microbes are useful to man in diverse way. Some of the most important contribution of microbes to human welfare are discussed in this chapter. अब यहाँ पे क्या बोला है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट माइक्रोब्स
जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज करेंगे। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे कुछ जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए ये मैं बोल रहा हूँ, ये पैराग्राफ 4 मार्क में पूछ सकते हैं। 4 मार्क में ये पैराग्राफ पूछ सकते हैं, बराबर। ये हमने 2 दिन पहले ही देखा था, राइट। जैसे कि याद करो, जैसे कि क्या देखा था, याद करो। LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, याद आया कुछ। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेगा, तो जो मिल्क है उसमें से कर्ड बना देगा, और वो विटामिन B12 न्यूट्रिशनली वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करेगा। उसके बाद सेकंड क्या था, तो डोसा इडली, उसके लिए भी फर्मेंटेशन करना पड़ेगा। इवन यहाँ पे एक पॉइंट जो दिया है कि जो यीस्ट है, मैं कैमरा सेट कर देता हूँ, जो यीस्ट है यहाँ पे, वो यीस्ट फर्मेंटेशन करेगा, फर्मेंटेशन करेगा, और ये फर्मेंटेशन करेगा यीस्ट, और इथेनॉल बनाएगा। बट कैसे, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो यीस्ट है उसमें फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस साइकिल तो चलेगा, ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलेगा। यानी ग्लूकोज में से DHAP और PGL, PGL में से पायरुवेट बनेगा, और एक नहीं 2 पायरुवेट बनेंगे, बिकॉज DHAP विल आल्सो कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। आगे क्रैप साइकिल नहीं चलेगा, बट ये ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन। सो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस चलेगा तो 2 ATP मिलेंगे, राइट। या 2 ATP मिले उसका टेंशन नहीं लेना है, बट आगे जाके ये पायरुवेट यानी CH3 COCOOH है 2, उसमें से आगे क्या होगा, तो यहाँ कैमरा सेट कर रहा हूं, उसमें से क्या होगा, ये CO2 रिमूव होगा, और ये CO2 जो है वो रिमूव होगा यहाँ से। कितने CO2 है, 2 CO2 रिमूव हो गए, बाकी क्या बचा, CH3 CHO बाकी बचा। कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2, बराबर। तो ये पायरुविक एसिड में से एसिटाल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। ओके, अब ये एसिटाल्डिहाइड में से क्या होगा, CH3 CHO, उसमें से क्या बनेगा, तो याद करो C2H5OH। आपको मैं बोल देता हूं कि ये जो मैंने इक्वेशन बोला है, आपको होगा ये बोर्ड में आएगा, बोर्ड में ड्रॉ करना है नहीं, ये पॉइंट है, वो जस्ट आपको नीट के स्टूडेंट जो है, वो कोई भी हो, बोर्ड वाले हो तो भी नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, आप सबके लिए है। तो प्लीज फोकस करो, यहाँ पे क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड में से इथेनॉल कैसे बना, तो मैं बोलता हूं कार्बन कितने हैं यहाँ, 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, यहाँ पे 4 हो गया, यस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हो गए, यस। बट हाइड्रोजन वो 3 + 1 4, 4 2 ज़ा 8, राइट, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ 5 + 1 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ होगा आपको ये 4 कहाँ से आए, 4 हाइड्रोजन कहाँ से आए, तो आपको याद रखना है ग्लाइकोलिसिस में NaDH2 मिला था, और साइकिल 2 बार चल रही है, सो 2 NaDH2 मिले थे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 NaDH2, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो ऐसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐड हुए, इसलिए यहाँ पे कितना हुआ, 12, 8 + 4 दैट मीन्स 12। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो ऐसे इथेनॉल बनेगा, इसको बोलेंगे इथेनॉल। और इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इसको फर्मेंटेशन बोलेंगे। और यहाँ होगा, आपको ये क्यों बताया, ये इसके लिए बताया है कि भाई CO2 प्रोड्यूस्ड होगा, तो सामने जो सरफेस है चीज की या ब्रेड की कोई भी, वो बफ्ट होगी, बफ्ट यानी सॉफ्ट होगी, और कई सारे पोर होंगे, और खाने में मजा आएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये पोर की वजह से मैंने ये बोला है कि क्यों बने पोर छोटे छोटे, CO2 की वजह से। और इससे चीज भी बना सकते हैं, और ब्रेड भी बना सकते हैं। और ये इथेनॉल
ईस्ट का एनारोबिक फर्मेंटेशन हुआ, ईस्ट का एनारोबिक फर्मेंटेशन हुआ और मिला है। और ये ईस्ट कौन सी है? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ओके, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी से इससे ब्रेड भी बनती है और इसीलिए इसको इसको बैकर सीस्ट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? और उसके बाद आएगा यही पैराग्राफ में टोडी, टोडी जो साउथ इंडिया में यूज होता है, जो पाम पाम की कॉर्क आती है, छाल कॉर्क, राइट, उसमें से ये बनता है। इवन बाम्बू का भी फर्मेंटेशन करता है। ये टोटली पैराग्राफ में क्या बोला है? फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन, बराबर, समझ में आया? और कुछ नहीं बोला है। फर्मेंटेशन यहाँ पे आएगा। और जस्ट लास्ट यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये बोली है कि यहाँ पे दो टाइप की चीज होगी, दो टाइप की चीज होगी, स्विस चीज, स्विस चीज एंड रॉकवी फोर्ड चीज। स्विस ये चीज है और ये चीज है, स्विस एंड रॉकवी फोर्ड। ये जो स्विस चीज है, ये स्विस चीज है, उसके ऊपर यहाँ पे याद रखो, स्विस चीज के ऊपर क्या है और रॉकवी फोर्ड के ऊपर क्या है। रॉकवी फोर्ड चीज पे फंजाई का ग्रो हुआ है। क्या ग्रो हुआ है? फंजाई ग्रो हुई है। और यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रो किया है, जिससे चीज का प्रॉपर हमें बेनिफिट मिले। उसकी सरफेस बेस्ड हो, उसका टेक्सचर बेस्ड हो, टेक्सचर यानी सरफेस, उसका टेस्ट बेस्ड हो, उसका कलर, लुक, स्मेल, ऑर्डर, ये सभी बेस्ड हो। इसके लिए इसमें मॉडिफाई किया, बट यहाँ पे बैक्टीरिया यूज किया, यहाँ पे फंजाई का डेवलप ग्रोथ किया। बैक्टीरिया कौन सा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी, मैंने कल भी बोला था, राइट। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ क्लियर करते, टेक्स्ट बुक में से लाइन बाय लाइन फास्ट रीड करते हैं। थियरी वाले स्टूडेंट प्लीज फोकस ज्यादा करो, लाइन बाय लाइन याद भी रखना है। स्टार्ट। You would be surprised to know that what we use microbe or products derive from them every day. A common example is the production of curd from milk. Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria (LAB) grow in milk and convert it to curd. During growth, the LAB produce acid that coagulate, right? Coagulate यानी thickness, thick हो जाना, and partially digest the milk protein. A small amount of curd added to fresh milk as inoculum or starter contain million of LAB, right? कई सारे LAB होंगे, lactic acid bacteria होंगे, which at suitable temperature it will be multiplied, thus converting milk to curd, which also improve its nutritional quality by increasing vitamin B12. In our stomach, the LAB play very beneficial role in checking disease causing microbes. Okay. Now the dough, which is used for making food, such as a dosa, idli, is also fermented by bacteria. The puffed up appearance of dough is due to production of CO2 gas. Can you tell me which metabolic pathway is taking place resulting in formation of CO2? Yes, अभी मैंने बोला जो बोर्ड पे ड्रॉ किया है, राइट, वही केमिकल पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे यूज करेगा. Where do you think the bacteria for this fermentation came from? Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using Baker's yeast. कौन सी Baker's yeast? Saccharomyces cerevisiae. अभी मैंने बोला. A number of traditional drink and food are also made by fermentation by the microbes. एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको बोला था कल, तो आपका बोर्ड वालों का फ्राइडे टेस्ट होगा, बोर्ड वालों का फ्राइडे टेस्ट होगा और उसमें 8th चैप्टर एंड 10th चैप्टर का थियरी और एमसीक्यू दोनों होगा. 20 मार्क के एमसीक्यू और 20 मार्क की थियरी होगी.
ओके, माइंड इट प्लीज। बोर्ड का टेस्ट सबको देना है, नीट वालों को और बोर्ड वालों को। फ्राइडे है, याद रखो प्लीज, शाम को होगा फ्राइडे, शाम इवनिंग में होगा। चलो आगे। A number of traditional drink and food also made by fermentation by the microbes. Toddy, a traditional drink of some part of southern India, is made by fermenting sap from palm. Microbes are also used to ferment fish, soybean and bamboo. इनका भी fermentation होगा। Cheese is one of the oldest food item in which microbes were used. Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor, and taste. The specificity coming from microbe used. For example, the large hole in Swiss cheese are due to production of large amount of CO2 by bacterium named Propionibacterium sharmani. The Roquefort cheese are ripened by growing a specific fungi on them, which give them a particular flavor. ये फिनिश हो जाए, उसके बाद मुझे ये लिख के सेंड करना है। कितनी बार बोल रहा हूं मैं, बट आप सेंड नहीं कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। चलो माइक्रोब, अब आगे इंडस्ट्री में कैसे यूज करेंगे तो आगे देखते हैं। इवन इन इंडस्ट्री microbes are used to synthesize the number of products valuable to human being. Beverage and antibiotic are some example. Production on an industrial scale required growing microbes in very large vessel called a fermenter. इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा फर्मेंटर होगा, जैसे कि हम घर पे भी फर्मेंटेशन करते हैं, बट छोटा वेसल होता है, यहाँ पे लार्ज स्केल पे वेसल होगा, उसको फर्मेंटर बोलेंगे। राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट लाइन देखेंगे। यहाँ पे दिया है, वेट, बेटा यहाँ अनसपोर्टेड फाइल बोल रहा है, क्यों, देख लेता हूँ एक सेकंड। ओके ओके ओके, हो गया हो गया हो गया, दूसरा पेज पे क्लिक किया था इसलिए। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पे देख सकते हो, आपको क्या ये तो छोटा है, नहीं छोटा है, ये हाफ रूम कवर करेगा, और नीचे का फर्मेंटर देखो, है ना, मिसाइल जैसा। ओके चलो देखते हैं, फर्मेंटेड बेवरेज, ये काफी इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज फोकस करो। पूछ सकते हैं 3 मार्क में, फर्मेंटेड बेवरेजेस, microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, or rum. For this purpose, the same yeast, Saccharomyces cerevisiae, is used. समझ में आया? For bread making and commonly called a brewer's yeast. यानी ब्रेड भी बनाई थी, राइट, बट ब्रेड बनाएगा तो उसको यहाँ पे Saccharomyces को बेकर्स यीस्ट बोलेंगे, बट वाइन बनाएगा तो उसको ब्रेवर्स यीस्ट बोलेंगे, ब्रीवर्स यीस्ट is used for fermenting malt, cereal, and fruit juice to produce ethanol. Do you recollect the metabolic reaction which result in production of ethanol by yeast? Depending on type of raw material used for fermentation and the type of processing, that means with or without distillation, different type of alcoholic drink are obtained. Wine and beer, wine and beer are produced without distillation, where whiskey, brandy, and rum are produced by distillation of fermenter broth.
आपको होगा ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, तो आपको याद रखना है। जस्ट मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। हाँ प्रीतेश सर बोलो। हाँ बोलो बोलो। ना 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 मारे 1 વાગ્યા સુધી नहीं टाइम यार। हाँ 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 ओके 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 हाँ वांधो नहीं, તમે તમારે પતાય। ओके 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 डन डन डन। हाँ चलो चलो अब हम देखेंगे। हाँ ओके ओके देखो कौन सी लाइन थी। ओके यहाँ पे क्या बोला है कि द वेयर द विस्की ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यानी क्या, तो मिक्सर होगा कई सारे प्रोडक्ट का, उसमें से विस्की को अलग करते हैं और उसके बाद यूज करते हैं। ब्रांडी को भी वैसे ही और रम को भी। बट यहाँ पे वाइन हो या बियर हो, उसमें टोटली मिक्सर होता है, उसमें से डिस्टिलेशन नहीं करते हैं। आपने सुना होगा निस्यंदन यानी सेपरेशन, सेपरेट करना, समझे। चलो नेक्स्ट एंटीबायोटिक। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे तो मैं आपको बोल देता हूं। देखो देखो इसके लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। फोकस करो स्क्रीन पे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था ना, राइट। वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अचानक से एंटीबायोटिक का सर्च आउट हुआ। कैसे, तो वो एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकाई या कोकस। ये स्टेफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया ये पेट्री डिश पे ग्रो कर रहे थे, राइट। यहाँ पे इतने बैक्टीरिया को ग्रो किए, उसके बाद बैक्टीरिया यानी कि कॉलोनी इंक्रीज होगी। यहाँ कॉलोनी इंक्रीज हुई, यहाँ हुई, यहाँ कॉलोनी बनी, कॉलोनी यानी बंच ग्रुप, यहाँ पे कॉलोनी बनी। और उसके बाद ये साइंटिस्ट ने ये पेट्री डिश को वॉश के लिए रख दिया, बाथ टब में, वॉश टब में रख दिया। और उसी दिन ये पेट्री डिश का वॉश हुआ नहीं, सुनो, ड्यू टू एनी रीजन ये पेट्री डिश का वॉश आउट हुआ नहीं। और उसने दूसरे दिन देखा तो उन्होंने ये देखा कि भाई यहाँ पे यहाँ सभी जगह कॉलोनी है, बट ये दो जगह 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 एंड 3 जगह कॉलोनी है, बट 4 एंड 5 ये दोनों जगह कोई कॉलोनी नहीं है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि 4 एंड 5 ये दोनों जगह पे कुछ होना चाहिए जो एंटी बैक्टीरियल है। एंटी बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया को किल कर दिया। उसके बाद उन्होंने फिर से स्टडी किया कि यहाँ पे क्या है, तो उनको यहाँ पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले, राइट, कि जो यहाँ पे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहे थे। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से थे, फंजाई। कौन था, फंजाई। और ये फंजाई का नाम क्या था, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नॉटेटम या पेनिसिलियम नॉटेटम, नॉटेटम नाम था। उसके ऊपर से ये जो एंटीबायोटिक यहाँ पे बनी, राइट, कि जिसने एंटीबैक्टीरियल एक्शन की, उसको पेनिसिलियम बोला है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक का नाम रखा है। ओके, तो वैसे यहाँ पे एंटीबायोटिक कैसे बनी, राइट। तो यहाँ पे याद रखना एंटीबायोटिक क्यों बोला है, तो बायोस दैट मीन्स लाइफ, एंटी दैट मीन्स ऑपोजिट, लाइफ के ऑपोजिट। एंटीबायोटिक हम लेते हैं तो हमने हमें किल करना है, हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, उसको किल करना है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला, एंटीबायोटिक ग्रीक वर्ड है। और 20th सेंचुरी में ये एंटीबायोटिक का इन्वेंशन हुआ था। सो वी विल स्टार्ट। देखो एंटीबायोटिक स्टार्ट। Antibiotic produced by microbes are regarded as one of the most significant discovery of 20th century and have greatly contributed towards the welfare of human society. Anti is a Greek word that means against and bio means life. Together they mean against life in the context of disease causing organism where with reference to human being
they are pro-life and not against. Antibiotic are chemical substance which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other microbes. समझ गए? ह्यूमन के लिए ये प्रो लाइफ क्यों है? तो ह्यूमन को ये लाइफ देते हैं इसलिए प्रो लाइफ है। जैसे कि वैक्सीन, वैक्सीन देते हो वो एंटीबायोटिक बोल सकते हैं, लाइक वो लाइफ देंगे, इसलिए प्रो लाइफ बोला है। चलो अगला पैराग्राफ। यू आर यू आर फैमिलियर with the commonly used antibiotic penicillin. Do you know that penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery? Alexander Fleming, while working on Staphylococci bacteria, once observed a mold growing, mold यानी fungi, ये penicillin notatum हम बोला ना, fungi, mold growing in one of his unwashed culture में उसने देखा, उन्होंने देखा कि मोल्ड ग्रो हुई है, around which स्टेफाइलोकोकाई could not grow, right? जहां मोल्ड थी वहां स्टेफाइलोकोकाई नहीं था। दैट मीन्स मोल्ड में से कुछ केमिकल बना, वो बैक्टीरिया को किल करेगा। he found that he found out that it was due to chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum. However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernst Chain and Howard Florey. Ernst Chain and Howard Florey. This antibiotic was extensively used to treat American soldier wounded in World War II. राइट, वर्ल्ड वार में ये एंटीबायोटिक यूज हुई थी, क्योंकि हमारा भी एक्सीडेंट होता है तो पहले स्पिरिट यूज करते हैं डॉक्टर, क्यों? बैक्टीरिया किल हो जाए इसके लिए। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। समझ गए? ओके। अब जो कोई यूज का नहीं है पैराग्राफ, बट हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हमें कोई पेज बाकी नहीं रखना है। सो नेक्स्ट लाइन। आफ्टर पेनिसिलिन other antibiotic were also were also purified from other microbes. इसके बाद कई सारे एंटीबायोटिक आए कई सारे डिसीज के लिए। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक एंड फाइंड आउट देयर सोर्स? यस, बट अभी देखो यहाँ लिखा है एंटीबायोटिक हैव ग्रेट इम्प्रूव्ड our capacity to treat deadly disease such as the plague, right? Whooping cough, કાલી ખાંસી એને કહેવાય છે, डिप्थेरिया, गाल पछोड़िયું, गाल घोटू, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग बुलाए छे। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा ये सभी डिसीज जैसे कि एड्स में 2 घंटे हुए थे, राइट? कैंसर चलाने में 2-3 घंटे हुए थे, वैसे ये भी ये 4 डिसीज को कंप्लीट करने के लिए मुझे वीक चाहिए, बट अभी बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, तो इससे बेटर है कि टाइम वेस्ट मत करो, बराबर? बस ये डिसीज होते हैं, ऐसे याद रखो, which used to kill million all over the globe. ओके, समझ में आया? और इसके नीचे का पैराग्राफ तो हमने देखा था, इसके नीचे का पैराग्राफ हमने देखा था, याद हो तो, बराबर? क्लियर कट है मुझे याद कि केमिकल एंजाइम देखो मैंने अंडरलाइन की है, वहां साइट्रिक एसिड, थर्ड लाइन देखो, साइट्रिक एसिड किससे बना? एस्परजिलस नाइजर। देन अंडरलाइन की है उसके नीचे एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड कैसे बना? राइट, देखो एसिडिक एसिड कैसे बना? एसिडोबैक्टर, एसिडोबैक्टर एसिडी में से। साइट्रिक एसिड कैसे बना? एस्परजिलस में से। देन लाइक कहाँ गया? हाँ, ब्यूट्रिक एसिड कहाँ बना?
ये क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम में से। देन लैक्टिक एसिड कहां बना, लैक्टोबैसिलस में से। समझ गए? ओके, नाउ नीचे जो दिया है उसको हमने पहले भी स्टडी किया था, याद करो। इथेनॉल बनाने के लिए ईस्ट चाहिए, देन नीचे लाइपेज चाहिए लॉन्ड्री में, देन प्रोटीएज चाहिए, पैक्टिनेज चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फिर से कौन सा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये मेरा फेवरेट, मैंने बोला था ये मेरा फेवरेट है। कौन सा, तो देखो यहाँ स्ट्रेप्टोकाइनेज आप देख सकते हो, स्ट्रेप्टोकाइनेज, देन साइक्लोस्पोरिन ए, एंड उसके बाद यहाँ स्टैटिन है, राइट। अब मैं आपको बोलूंगा ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये किससे बना है, स्ट्रेप्टोकोकस से बना है, राइट, और प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, याद, यह रीडिंग करो, एंड मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी स्ट्रेप्टोकोकस को मॉडिफाइड किया, एंड इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग ऑफ क्लॉट from the blood vessel of patient who have undergone myocardial activity, myocardial infection, right, and leading to heart attack. Heart attack भी हो सकता है अगर ट्रीटमेंट नहीं की तो। another bioactive another bioactive molecule, that means cyclosporin A, that is used as an immunosuppressive agent। मैंने बोला था इम्यूनोसप्रेसिव यानी क्या, immunosuppressive agent in organ transplantation, right, is produced by fungus Trichoderma polysporum। मैंने क्या बोला था, याद करो, मैंने बोला था कि अगर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करो, अगर मैं मेरी किडनी दूसरे पर्सन को दूं तो उसमें एलर्जी होगा, यानी उसमें एंटीबॉडी का ओवर प्रोडक्शन होगा, यानी इम्यूनिटी, राइट, ज्यादा हो जाएगी, एंटीबॉडी ज्यादा होंगे, तो इम्यूनिटी को सप्रेस करना है, तो ही एलर्जी से छुटकारा मिलेगा। और ये साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम में से बनता है। नाउ स्टैटिन स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, consist monosc purpureus, have been commercialized as blood cholesterol lowering agent. It acts by competitive inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। Clear? समझ में आना चाहिए। ओके, अब उसके बाद नीचे सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो वो तो मैंने बोल दिया है आपको, याद करो, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, और पहले भी मैंने आपको स्टडी करवाया कि सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, राइट। तो सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला शॉर्ट नोट आपको खुद करना है। ओके, अब यहां से हम इतना रखेंगे, बाकी का कल मैं आपको सेंड करूंगा। ओके, थैंक यू। कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू लेंगे इसके।